Hello friends, welcome back to our YouTube channel. Hope you are all fine. Currently, we are discussing Unit 1 of Educational Technology and ICT. We have discussed certain topics. अगर आपने उन वीडियोस को अभी तक नहीं देखा, आप जाके उन वीडियोस को ऑल्सो देख सकते हैं. एंड टॉपिक जो कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज़ दी forms of educational technology, and specifically today we are going to discuss about the teaching technology. Alright, then let's start. शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें. लेट्स स्टार्ट विद द ब्रीफ इंट्रोडक्शन. टीचिंग टेक्नोलॉजी जो है, इट रिप्रेजेंट अ मेजर शिफ्ट इन हाउ वी अंडरस्टैंड टीचिंग. So instead of viewing teaching as a natural talent or personal art, it views or it treats teaching as a planned, analyzable and improvable process. ठीक है. First of all, let's discuss the meaning and definition of teaching technology. We will discuss what is it all about. Teaching technology जो है, it is a specialized form of educational technology जो कि डायरेक्टली फोकस करती है ऑन टीचर बिहेवियर, क्लासरूम इंटरेक्शन एज वेल एज ऑन इंस्ट्रक्शनल इफेक्टिवनेस. एंड ये जो टीचिंग टेक्नोलॉजी है, इट अप्लाइज वेरियस प्रिंसिपल्स लाइक फिलोसफिकल, psychological and scientific principles to the in the act of teaching. So we can say जो teaching technology है, it equals science of how teacher teaches in the classroom. And इसका जो main goal और जो इसका central aim है, that is to develop technology of teaching जहाँ instructional success जो है, that does not only depend on the intuition, experience or personality, but rather that also depends on the systematic and replicable framework. That also means कि जो teaching है, that can be planned, that can be also analyzed and that can be also improved. और जो core concept है teaching technology का, इसमें teaching जो है उसको देखा जाता है as a set of controllable variables, including variables like planning, presentation, interaction and evaluation. So by controlling and by refining these variables, जो teaching की effectiveness है, that ultimately increases. ठीक है. Now talking about the 4 phases of teaching technology. Teaching technology जो है, it operates or it works in a cyclical process rather than a linear one. And इसका one of the foremost phase जो है, that is the planning phase, that we also called as the pre-active phase. ये जो phase है, this phase basically occur before when जब teacher जो है when he enters the class, उसके जो और इसकी जो key activities है जो कि teacher consider करता है before entering into the class. He first defined the objectives. Based on the Bloom's taxonomy, जो टीचर है वो डिफाइन करता है various objectives of teaching, including the cognitive, affective और psychomotor. और यहाँ जो टीचर है वो कंसिडर करता है objectives जो है, that should be specific, that should be measurable as well as observable. Like for example, by the end of lesson जो students हैं, they will be able to analyze the causes of topics. Like for example, if they learn about the French Revolution, they will be able to analyze the causes of French Revolution. Second जो है, that is the task analysis. In task analysis जो complex concepts होते हैं, उनको break किया जाता है into the simpler units or smaller units. जिसमें जो लॉजिकल सीक्वेंस है वो मेंटेन की जाती है, जो कि अल्टीमेटली प्रिवेंट करती है कॉग्निटिव लोड को. थर्ड जो टीचर है वो सिलेक्ट करता है टीचिंग स्ट्रेटजी को, विच इंक्लूड लेक्चर, डिस्कशन, डिमॉन्स्ट्रेशन, सिमुलेशन और डिजिटल एक्टिविटी. सो दिस इज हाउ जो टेक्नोलॉजी है दैट हेल्प टीचर टू चूज द मोस्ट एफिशिएंट पाथ rather than the most comfortable one.
सेकेंड फेज जो है टीचिंग का, दैट इज द एग्जीक्यूशन फेज, दैट वी ऑल्सो कॉल्ड एज द इंटरेक्टिव फेज। ये जो फेज है दिस इज बेसिकली द लाइव क्लासरूम फेज, जहाँ टीचिंग जो है दैट एक्चुअली हैपन। एंड इसके हमें डिफरेंट स्टेप्स देखने को मिलता है, लाइक स्टिमुलस वेरिएशन, जो कि हमें नेसेसरी देखने को मिलती है टू मेंटेन द अटेंशन इन द क्लासरूम, जिसमें टीचर जो है वो वैरी करता है इन दियर वॉइस मॉड्यूलेशन, गेस्चर्स एंड मूवमेंट, और वो यूज़ करता है विजुअल एंड डिजिटल मीडियम, जो कि अल्टीमेटली प्रिवेंट करती हैं मोनोटोनी एंड मेंटल फैटिग को। सिमिलरली रीइंफोर्समेंट जो है वो ऑल्सो टीचर अडेप्ट करता है इन दिस फेज। ये जो रीइंफोर्समेंट है, यू मे नो इट इज़ बेस्ड ऑन द बिहेवियरिस्ट साइकोलॉजी, जिसमें जो टीचर है वो वर्बली प्रेज करता है, वो प्रोवाइड करता है डिजिटल बैजेस, एंड जो स्टूडेंट्स हैं दे प्रोवाइड इमीडिएट फीडबैक, जो कि अल्टीमेटली स्ट्रेंथ करता है करेक्टर रेस्पॉन्स ऑफ द टीचर स्टूडेंट। एंड थर्ड जो है दैट इज द स्कैफोल्डिंग। एंड यू माइट हैव हर्ड अबाउट द स्कैफोल्डिंग। ये जो स्कैफोल्डिंग है इट इज़ मेनली रूटेड इन वाइगॉस्कीज जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसमें जो टीचर है वो प्रोवाइड करता है हिंट्स, वो रेज करता है लीडिंग क्वेश्चंस, एंड विच अल्टीमेटली मेक्स क्लासरूम मोर इंटरेक्टिव थ्रू। ये जो स्कैफोल्डिंग है इट हेल्प लर्नर्स टू मूव फ्रॉम डिपेंडेंस टू इंडिपेंडेंस, ठीक है। थर्ड फेज जो है दैट इज द एवोल्यूशन फेज, दैट वी ऑल्सो कॉल्ड एज द पोस्ट एक्टिव फेज। जो टीचिंग टेक्नोलॉजी है that may be incomplete without the measurement, and evaluation phase जो है it is all about the measurement। इसमें जो टीचर्स हैं वो evaluate करता है by using different strategies like formative evaluation। इसमें टीचर जो है वो ongoing टीचिंग प्रोसेस के दौरान वो चेक करता है the progress of students through digital quizzes, observation, questioning, या summative evaluation जो है जो कि टीचर परफॉर्म करता है एट द एंड ऑफ द लेसन और यूनिट असेसमेंट विच इंक्लूड टेस्ट्स, असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स। एंड डेटा ड्राइवन इंसाइट जो है जिसमें टीचर जो है वो आइडेंटिफाई करता है लर्निंग गैप्स को और वो रिवील करता है टीचिंग वीकनेसेस को, एंड विच अल्टीमेटली सपोर्ट इंस्ट्रक्शनल इम्प्रूवमेंट। सो दिस इज़ हाउ जो एवेल्युएशन है इट इन्फॉर्म्स फ्यूचर प्लानिंग। फोर्थ फेज जो है दैट इज़ द फीडबैक फेज और रिफ्लेक्टिव फेज। ये जो फेज है इसको ऑफन इग्नोर किया जाता है, बट ये हमें वन ऑफ द मेजर फेज देखने को मिलता है इन द टीचिंग टेक्नोलॉजी। एंड इसमें जो टीचर रिफ्लेक्शन है वो हमें इम्पोर्टेंट देखने को मिलते हैं, जिसमें टीचर जो है वो रिफ्लेक्ट करता है ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स, लाइक विच ऑब्जेक्टिव्स वेर नॉट अचीव्ड, which strategies fail or which strategies succeed, and how should we prepare the next lesson dramatically. So यहाँ जो टीचर है he becomes learning professional rather than a content expert, ठीक है। Talking about the key components of teaching technology, there are various key components of teaching technology जिनके थ्रू जो टीचिंग है उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, स्पेशली अराउंड द इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। इसमें जो इनपुट होता है दैट इज़ बेसिकली द कंटेंट विच इंक्लूड नॉलेज, कंसेप्ट, स्किल्स, जिनको ऑर्गेनाइज किया जाता है फ्रॉम सिंपल टू कम्प्लेक्स और फ्रॉम नोन टू अननोन। एंड यहाँ जो टेक्नोलॉजी है दैट हेल्प्स टीचर टू स्ट्रक्चर कंटेंट एंड टू अलाइन इट विद ऑब्जेक्टिव्स। सेकेंड जो है दैट इज़ द कम्युनिकेशन और प्रोसेस। कम्युनिकेशन में आते हैं लाइक वर्बल एक्सप्लेनेशंस, नॉन वर्बल क्यूज या डिजिटल इंटरेक्शन। एंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है दैट मेंटेन्स क्लैरिटी, दैट एंगेज स्टूडेंट्स एट दैट अल्टीमेटली एनहांस द इंटरेक्शन। थर्ड जो है दैट इज़ द बिहेवियर चेंज और आउटपुट।
जो कि हमें बेसिकली ट्रू टेस्ट देखने को मिलता है टीचिंग का, एंड ये मेनली डन होता है आफ्टर द इंस्ट्रक्शन। लाइक इसमें टीचर जो है वो कंसिडर करता है वेदर अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव्स और नॉट, और जो स्किल्स हैं दे डेवलप्स और नॉट, और जो एटीट्यूड्स हैं दे चेंज और नॉट। सो इफ नॉट देन योर टीचिंग टेक्नोलॉजी है दैट हैज़ फेल्ड। ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग टेक्नोलॉजी। ये जो फीचर्स हैं, दीज फीचर्स जो कि हम डिस्कस करेंगे, दे डिस्टिंग्विश टीचिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम अदर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फॉर्म्स लाइक टीचर सेंटर्ड और स्किल डेवलपमेंट। इसमें मेनली फोकस किया जाता है ऑन क्वेश्चनिंग स्किल्स, एक्सप्लेनिंग स्किल्स और क्लासरूम मैनेजमेंट। सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस। इसमें कंबाइन किया जाता है आर्ट ऑफ टीचिंग को इंक्लूडिंग एक्सपीरियंस, क्रिएटिविटी एज वेल एज साइंस ऑफ लर्निंग को इंक्लूडिंग साइकोलॉजी एंड रिसर्च। ठीक। थर्ड जो है दैट इज़ फ्लेक्सिबल एंड ह्यूमन ओरिएंटेड। टीचिंग जो है इट इज़ अ सिस्टमेटिक प्रोसेस रादर देन ए रोबोटिक, एंड टीचर जो है वो अडेप्ट करता है क्लासरूम रियलिटीज़ को अकॉर्डिंगली। ठीक। फोर्थ जो है दैट इज़ दी माइक्रो टीचिंग एज ए कोर टेक्निक। माइक्रो टीचिंग जो है इट इज़ ए ट्रेनिंग लेबोरेटरी फॉर टीचिंग स्किल्स। लाइक इसमें शॉर्ट लेसन्स जो है वो प्रोवाइड की जाते हैं। इसमें ग्रुप्स जो होते हैं दैट आर वेरी स्मॉल, एंड इसमें मेनली फोकस जो है वो होता है ऑन वन स्किल एट अ टाइम, एंड वॉइस रिकॉर्डिंग एंड फीडबैक जो है दैट इज़ ऑल्सो डन हियर इन माइक्रो टीचिंग टेक्निक। एंड इसमें स्किल्स जो है उनको रिफाइन किया जाता है थ्रू क्वेश्चनिंग, रीइंफोर्समेंट, एक्सप्लेनेशन। सो दिस इज हाउ ये जो माइक्रो टीचिंग है इट ट्रांसफॉर्म्स टीचिंग फ्रॉम ट्रायल एंड एरर इनटू द मास्टरी। ठीक है। एट कंक्लूजन वी हैड लर्न दैट कि जो टीचिंग टेक्नोलॉजी है इट आंसर मोस्ट क्रिटिकल क्वेश्चंस इंक्लूडिंग हाउ ए गुड टीचिंग कैन बी मेड रिपीटेबल, ट्रेनेबल एंड इम्प्रूवेबल, एंड इट डज नॉट रिप्लेस टीचर क्रिएटिविटी बट रादर इट स्ट्रेंथन्स टीचर इफेक्टिवनेस, जो कि ट्रांसफॉर्म करता है टीचिंग को इनटू प्रोफेशनल टेक्नोलॉजी। सो वी कैन से जो ग्रेट टीचर्स हैं दे आर नॉट बॉर्न बट दे आर सिस्टमेटिकली डेवलप्ड। आई होप ये सब आपको क्लियर हुआ होगा। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कहीं पे डाउट, कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेशन में ज़रूर लिखें। सो दैट इज़ इट। I hope you find this video informative. Don't forget to share, like and subscribe to Discipline Talk channel. Thank you for watching.